वेंगटकर आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। Respected principal, deans, HODs, faculty staff and my dear students, I welcome you all on the occasion of International Yoga Day. In the beginning, I would like to give little information about IYD and some important tips in general in a couple of minutes. So, International Yoga Day is celebrated annually on 21st of June and was declared to be internationally recognized by the United Nations General Assembly UNGA on December 11, 2014. Yoga is nothing but physical, mental and spiritual practice or discipline that originated from India. Our Indian Prime Minister, Honorable Mr. Narendra Modi, in his UN address, suggested the date 21st June as it is the longest day of the year in the Northern Hemisphere and shares special significance in many parts of the world. So that is why this 21st June was proposed as IYD. This initiative found support from many global leaders. Total of around 175 plus nations co-sponsored the resolution and had the highest number of co-sponsors ever for any UNGA resolution. Following the adoption of the UN resolution, several leaders of spiritual movement in India voiced their support for the initiative. And so many countries now today are celebrating IYD. So we all are here to celebrate International Yoga Day. Before we proceed, some simple tips. While performing yogic practices, we must maintain cleanliness. That is an important prerequisite for any yogic practice. Yogic practice should be performed in a calm and quiet atmosphere with a relaxed body and mind. It should be done on an empty stomach or light stomach. Consume small amount of honey, lukewarm water if you feel weak. Bladder and bowels should be empty before starting practices. Mattress, yoga mat, dari or blanket you can use for this purpose. Light and comfortable clothes are preferred to facilitate easy movements. Yoga should not be performed in state of exhaustion, illness, in a hurry or in acute stress conditions. In case of any chronic disease, pain, any cardiac problem, physician or yoga therapist should be consulted prior to performing such practices. Yoga experts should be consulted before this yogic practice during any other issues. Now we are going to start our session with a prayer. Then all the practices which we are going to do will be demonstrated by my colleagues, Kalavati madam and Anvita madam. We have two volunteers also, that is Vidyadhari madam and Rupesh sir from Mechanical, to assist you. In case of any difficulty, you can ask them. They are there to help you out in the audience. Do not hold your breath unless it is specially mentioned. Breathing should be always through nostrils unless instructed. Do not hold your body tightly or jerk in any practice session. Perform every exercise as per your own capacity. Do not strain yourself, stretch your body unnecessarily. It takes some time to get good results, so be persistent while performing. There are contraindications or limitations for each yoga practice. Therefore, these contraindications must be kept in the mind. So, time to time for every exercise, we will be giving you instructions and please follow these two faculty members who are going to demonstrate. If you have any problem, you see them and then only you perform. Then we are going to end our session with Dhyan and Shanti Path. So, these are important points to be understood. Now we are starting our session with common yoga protocol which is designed by Ayush and which is followed across the globe. So we are starting with prayer. I request all to sit with folded legs, close your eyes and sit in Dhyana Mudra. Dhyana Mudra. Touch your index finger and thumb and keep it on your lap. Nasi janata Deva bhagam yatha purve Deva bhagam yatha purve Sanjanana upasate Sanjanana upasate Sanjanana upasate Sanjanana
भूतानाना उपासते। Keep your eyes closed. The meaning of this prayer is, may you move in harmony. Let your mind be equanimous. Let the divinity manifest in all your sacred endeavors. In a comfortable position, in a relaxed pose, पैरों में थोड़ा सा अंतर, 1 फुट से 2 फुट तक, ज़्यादा नहीं, 1 फुट तक। एंड स्टैंड इन अ रिलैक्स पोजिशन, आपको कहीं पे भी स्ट्रेन महसूस नहीं होना चाहिए। अभी गर्दन के प्रकार हम करेंगे, गर्दन रोटेशन, नेक रोटेशन। सो सबसे पहले नेक मूवमेंट होगा। स्लोली टर्न लेफ्ट, वापस आइए और एक बार। कम बैक टू नॉर्मल पोजीशन। अभी राइट साइड के कंधे पर आप अपना सर रेस्ट करेंगे। स्लोली, कहीं पे भी जर्क मत दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए वापस आइए। अभी लेफ्ट कंधे पे लेफ्ट शोल्डर, स्लोली डू इट, कम बैक। 1 मोर टाइम प्लीज। नाउ डू नेक रोटेशन। आप पहले चिन अपनी चेस्ट को लगाएंगे, ब्रीद आउट, चिन यहाँ लगाएंगे चेस्ट पे और स्लोली रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। डू इट वेरी स्लोली। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। ये अगर आपको चक्कर जैसे, जितना आप अंदर की तरफ आपके हाथों को ले जाएंगे और ऊपर लेकर जाएंगे उतना वो कंफर्टेबल और होगा। दिस इज़ वेरी गुड फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो ये एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हो। 5-5 बार करना है, अंदर और बाहर। अभी नहीं, जब भी आपको कुछ पेन वेन होगा तो। ये जो माइक्रो एक्सरसाइजेस अभी नेक रोटेशन के हमने किए, दैट इज़ वेरी गुड फॉर दिस नेक पोर्शन रिलैक्सेशन। नाउ हाथों को हम मूवमेंट लेंगे। पहले सामने लीजिए, प्लीज सी अन्विता मैडम एंड कलावती मैडम। फिर राइट साइड आप घुमाइए, धीरे राइट साइड घूम जाइए। टोटल 90 डिग्रीज तक का आपका बेंडिंग होना चाहिए। हाथ सीधे हैं और आप हाथ को ही देख रहे हो। अभी लेफ्ट साइड घूमिए, आप लेफ्ट हैंड को ही देख रहे हो, वैसे ही घूम रहे हो। पैरों को नहीं मोड़ना है, पैरों को नहीं मोड़ना है, सिर्फ हाथ जाएंगे पीछे। धीरे से करिए। वापस एक बार सामने आके हाथ नीचे। ये भी आपके स्पाइनल कॉर्ड को अच्छा ट्विस्ट देता है, सो स्लोली करना है। Now these are micro exercises which we have done. Now we are going to start with standing position योगासन। सबसे पहला आसन है, आप एक बार देख लीजिए, बाद में आप कीजिए। सबसे पहला है ताड़ासन। ताड़ासन मतलब हमें अपने आप को स्ट्रेच करना है। टर्न आउट और आपको पूरे हाथ को स्ट्रेच करते 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 ऊपर उठाना है, ताकि पैरों से लेके ऊपर तक आपकी बॉडी स्ट्रेच हो। पैरों को अभी नहीं उठाना है, सिर्फ हाथों को ऊपर लेकर जाना है। आपकी नज़र सामने ही है। योर हेड इज एट फिक्स पोजिशन, यू आर नॉट मूविंग योर हेड और नेक। सिर्फ हाथों को आप ऊपर लेकर गए। अभी धीरे से नीचे आइए, वापस ओरिजिनल पोजिशन। दोनों हाथ आपके शरीर के दोनों साइड में रखिए और एक बार कीजिए। क्लास्प योर हैंड्स, टर्न आउट, स्ट्रेच इट एंड अप। ब्रीथिंग इज नॉर्मल।
Hold it for 10 seconds. Bring it in front of you again and leave it slowly. अभी इसी को थोड़ा सा हम एडवांस करेंगे ताकि हम पैरों को भी उठा सकें. So full body is getting stretched. So same thing, this you are going to do it once only. Clasp your hands out, up, and now lift your heels. You are standing on your toes. Standing on your toes. This gives you very good balance. और पूरी बॉडी को अच्छा स्ट्रेच मिलता है. Come down. You should be able to hold this position from 10 to 30 seconds. If you do it regularly, 30 seconds. और उसको अपने थाई के अंदर शिफ्ट करेंगे. जिनको ये नहीं आ रहा है वो अपने पार्टनर का सपोर्ट ले सकते हैं. यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ योर पार्टनर. एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के आप अपने पैर को अपने थाइस के अंदर लगा के फिट कीजिए और हाथ को ऊपर उठाइए. जिन्होंने सपोर्ट लिया है वो नहीं उठा पाएंगे हाथ, कोई बात नहीं. वेरी गुड. स्लोली नमस्कार पोज. सामने देख रहे हैं आप फुल कंसंट्रेशन के साथ. कॉन्सेंट्रेट ऑन योर मूवमेंट्स एंड डू इट स्लोली. नहीं हो रहा है तो पार्टनर का सपोर्ट लीजिए. वेरी गुड. कम डाउन. ये था वृक्षासन. वृक्षासन एंड ताड़ासन विल गिव यू फुल स्ट्रेच एंड रिलैक्स बॉडी. Now this is known as path. Breathe out and come down very slowly. Very slowly. जितना आप नीचे जा पा रहे हो जाइए. Try to touch the ground. Knees bend नहीं होने हैं. Knees bend नहीं करने हैं. Slowly breathe in करते करते आप ऊपर आइए. Very good. और एक बार. रुपेश सर आप देख रहे हो ना पीछे. One more time. Come slowly down. Breathe in and come up. Put your hands on side of your body. Relax. Stand in relaxed position. Those are parallel to each other. Yes, starting position है. Now you have to bend backwards slowly. Very slowly. पैरों में कोई भी झुकाव नहीं. Bend backwards slowly. Breathing normally. Now come back to original position. Do it very slowly. One more time please. Backward bending. Very good. Do not bend your knees in these positions. Come back slowly. Very good. Come back to relaxed position. दोनों हाथों को शरीर के दोनों बाजू में. Now, in this little difficult आसन है, ये अभी स्टैंडिंग पोजीशन में, उसका नाम है त्रिकोण आसन. Instruction, this is little difficult आसन. पहले दोनों पैरों में 2 फुट तक का अंतर रखिए. 2 से 2.5 फुट तक हाइट के हिसाब से वो रहेगा. 2 से 2.5 फुट का अंतर रखिए. फिर आप राइट लेग, अभी राइट लेग को मूव करके वॉल की तरफ पॉइंट करना है. सिर्फ राइट लेग को हम राइट साइड से पहले कर रहे हैं. राइट. लेफ्ट फुट इज ऑन इट्स पोजीशन ओनली. राइट को हमने 90 डिग्रीज पे घुमा के वॉल की तरफ पॉइंट किया है. ये स्टार्टिंग पोजीशन है. अभी दोनों हाथों को स्ट्रेच करें. दोनों हाथों को स्ट्रेच करें. इट शुड बी पैरेलल टू योर बॉडी. करेक्ट. यस विद्या मैडम प्लीज सी एट द बैक. करेक्ट. अभी राइट हाथ को आपको जमीन को टच करना है आपके पैरों के पास और वैसे ही आप घूमेंगे. बॉडी आपकी वैसे ही घूमेगी. वेरी गुड. ट्राई. डू नॉट फोर्स योरसेल्फ. डू नॉट फोर्स. और आप अभी अपने राइट हाथ को देखेंगे. ओके. वेरी गुड. डू नॉट फोर्स योरसेल्फ. जितना आप नीचे जा रहे हो नहीं. वेरी गुड. कम बैक. दूसरी साइड से लेफ्ट लेग को दीवार की तरफ, लेफ्ट लेग को दीवार की तरफ मोड़ दिया. अभी लेफ्ट हैंड को आप नीचे
नीचे लाएंगे और आप ऊपर देखेंगे, राइट हैंड को ऊपर देखेंगे। आपका त्रिकोण जैसा आपका एंगल होना चाहिए। राइट हैंड को आप देख रहे हैं। यस, वेरी गुड। कम बैक। और एक बार करना है। ओके, वन मोर टाइम, दोज हू वांट टू ट्राई। स्लोली कम डाउन, राइट हैंड से जमीन पर टच किया, फिर आप ऊपर देख रहे हो, लेफ्ट हैंड की तरफ ऊपर देख रहे हो। वेरी गुड। आपका जो पूरा रिलैक्सेशन है वो साइड वेज बॉडी को मिलेगा, ठीक है? गुड। 10 के बाद थक जाते तो रुक जाइए। दिस विल गिव यू वेरी गुड सर्कुलेशन। अभी जो हमने माइक्रो एक्सरसाइजेस किए, इसके बाद हमारा सर्कुलेशन अच्छा होता है। वेरी गुड। नाउ सिट डाउन। वी आर गोइंग टू गिव फर्मनेस टू अवर बॉडी। तो अभी क्या करना है, दोनों हाथों से हम अपने तलवों को पकड़ेंगे। तलवों को पकड़िए आप, अंगूठों को, तलवों को पकड़ के आपको सामने लाना है, धीरे 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 सामने, आपके थाइस की तरफ सामने लाना है। जितना आप उसको पास ला सके, दैट वुड बी रियली गुड। क्लोज योर आईज एंड ब्रीथ नॉर्मली। डू नॉट गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेच टू योर बॉडी। जितना आप पास में ला सकते हो उतना लाइए। फोकस ऑन योर बॉडी एंड ब्रीथ नॉर्मली। वज्रासन। दिस गिव्स फर्मनेस टू योर बॉडी। अभी हाथों को छोड़ के वापस पैरों को नॉर्मल पोजीशन में लाइए। वेरी गुड। एंड डू इट वन मोर टाइम आफ्टर 10-15 सेकेंड्स। और एक बार। वेरी गुड। स्लोली bring it near to your body. Breathe normally. Close your eyes and just focus on your posture. पीठ सीधी है, गर्दन भी सीधी है, कहीं पे भी स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं वज्रासन। रेज योर हैंड्स अप, दोनों, और धीरे से सांस छोड़ते हुए सामने आइए और अपना माथा जमीन पर लगाने की कोशिश कीजिए। नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे, जितना आप होल्ड कर सको करो, नहीं तो आप वापस सांस लेते हुए ऊपर आइए। धीरे से ऊपर आइए। गुड। वन मोर टाइम। जिनको इसमें ये वज्रासन में बैठने की दिक्कत है, वो नॉर्मल जो हम सुखासन बोलते हैं वैसे भी बैठ सकते हैं। आप वैसे भी बैठ सकते हो, इसी का बेनिफिट मिलेगा। अनिता मैडम, यू सिट इन सुखासन, कलावती मैडम विल बी सिटिंग इन वज्रासन। आप सुखासन में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वापस से हाथ ऊपर, ब्रीद आउट एंड कम डाउन स्लोली। आप घुटने के बल खड़े हो जाइए, घुटने के बल खड़े हो जाइए। दोनों हाथ आपके शरीर के साइड में हैं। घुटने पे खड़े हो जाइए। यस। एनी प्रॉब्लम? बैक साइड। ठीक है, घुटने के बल सब लोग खड़े हो गए। अभी आपके दोनों हाथ आपके कमर के पीछे, जैसे हमने स्टैंडिंग पोजीशन में बैकवर्ड बेंडिंग किया, अभी ये पोजीशन में बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे और धीरे से पीछे जाइए। वेरी स्लोली, प्लीज डू नॉट फोर्स योरसेल्फ। अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध मतलब हम हाफ ही कर रहे हैं। कम बैक, हाथ वापस शरीर के साइड में। और एक बार आप ट्राई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। दोनों हाथ कमर के पीछे एंड देन यू आर बेंडिंग इन अ बैकवर्ड। घुटने के साइड में रखना है। राइट लेग को उठा के, आपका जो फुट है, पैर है, आप लेफ्ट घुटने के साइड में रख रहे हो।
अभी दोनों हाथ आपके साइड में ही है, ठीक है। तो राइट लेग उठा के आपने साइड में रख दिया। नाउ आपका राइट हैंड आपके बॉडी के पीछे जाएगा, राइट हैंड आपके बॉडी के पीछे जाएगा। सेकेंड पोजीशन, राइट हैंड आपके बॉडी के पीछे और लेफ्ट हैंड को बाहर से उठा के आपको एड़ी पकड़ने की कोशिश करनी है। दैट इज थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप और पीछे देखना है, अभी पीछे देखना है। 4 स्टेप्स है, वापस से मैं बताती हूँ। राइट लेग को उठा के घुटने के पास रखना है, फिर आपका राइट हाथ आपके शरीर के पीछे जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड से आपको एड़ी पकड़ने की कोशिश करनी है और शरीर को घुमाना है, पीछे की तरफ देखना है। अच्छा मैडम, हाथ को घुटने के ऊपर से लाना है, घुटने के ऊपर से हाथ, हाँ घुटने के ऊपर से लाना है। करेक्ट। रुपेश सर प्लीज देखिए, घुटने के ऊपर से हाथ आना चाहिए, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है उसका। दिस गिव्स कंप्लीट ट्विस्ट टू योर स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडिंग योर स्टमक। So constipation and stomach problem is made cured with this. अभी दूसरे साइड से, दूसरे साइड से जिनको समझ में आया वो वापस नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हैं, जिनको नहीं समझ रहा है विद्यार्थी मैडम ने ट्विस्ट कर रहे हो, साइड पार्टी सर आपका थोड़ा सा दूसरे थोड़ा सा इसमें हम 3 टाइप के आसन करने वाले हैं, ठीक है। सब लोग आ गए बराबर पोजीशन में। नाउ स्टार्टिंग पोजीशन फॉर दिस, देखिए हम जब योगासन करते हैं, कोई भी योगासन, स्लीपिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, उसकी शुरुआत की जो स्थिति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्थिति पहले रख के बाद में हमें सारे आसन करने चाहिए। कुछ भी आड़ा टेढ़ा सो के या ऐसे पोजीशन लेके हमें पर है। अभी एल्बोज के सपोर्ट के साथ आप धीरे से ऊपर उठिए, सांस लेते हुए धीरे से। एल्बोज जमीन पर ही है, एल्बोज जमीन पर है, ऊपर उठिए। हाँ वेरी गुड। इसमें आप ज़्यादा उठ नहीं पाएंगे, ये एंगल अराउंड 30 डिग्रीज तक होगा, है ना सर? मैथ्स प्रोफेसर 30 डिग्रीज तक होगा इस टाइम में। बस कम डाउन स्लोली, वन मोर टाइम। इसे सरल भुजंगासन कहते हैं। सरल मतलब सिंपल, आप जितना उठ पाएंगे उतना उठे, पैर को हिलाना नहीं है पीछे। आप जैसे रेस्ट कर रहे हो, बेड पे रेस्ट कर रहे हो ना, एल्बोज रख के बेड पे, ऊपर आपने अपना सर रखना है, दोनों पैरों में अंतर और रिलैक्स। नाउ दिस इज रिलैक्स पोजिशन फॉर दिस आसना टाइप्स। सीधा स्ट्रेट रखना है, ब्रिंग इट डाउन वापस, ठीक है। 90 डिग्री तक नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर राइट लेग को, वेरी गुड, ब्रिंग इट डाउन, ब्रिंग इट डाउन स्लोली। ओके, you can do cycling with this. Those who are दोनों पैरों से alternate, very good. Bring it down. Now relax for 10 seconds. मतलब पास में रखना है, एड़ियाँ पकड़ी है आपने। Now सांस लेते हुए आपको सिर्फ कमर को ऊपर उठाना है, जितना ऊपर जा सके कमर को ऊपर उठाइए धीरे से। आपकी दृष्टि अभी भी छत की तरफ ही है,
धीरे से सांस लेते हुए धीरे से ऊपर उठिए. 10 to 30 seconds hold and come down. Very good. Come down. Very good. Okay. वापस एक बार. वापस एक बार. सांस लेते हुए आपको ऊपर उठना है. फाइनल पोजीशन में आप नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे. 10 से 30 सेकंड आपको होल्ड करना है. पहले कमर आप नीचे लाएंगे, फिर हाथ छोड़ेंगे और पैरों को सीधा करेंगे. जैसे आपने ये पोजीशन एक्वायर की थी, वैसे हिसाब से आपको ये आसन की स्थिति छोड़नी है. ठीक है? रिलैक्स. वेरी स्लो. बैकपेन वाले प्रॉब्लम्स हैं कुछ तो नहीं हो. छोड़ते समय भी आपका सर पहले नीचे आएगा, हाथ छूटेंगे, फिर पैर से लगाएंगे. जो स्थिति होती थी उसी हिसाब से हमको वापस अभी राइट लेग से किया था, लेफ्ट लेग से. लेफ्ट लेग को घुटने में बैठ लीजिए. आप नीचे की तरफ लाइए, दोनों हाथों से पकड़िए और ट्राई टू टच द नी विथ योर फोrehead. एक पाद पवनमुक्तासन. क्योंकि एक ही पैर से हम करेंगे. द्विपाद पवनमुक्तासन. द्विपाद मतलब दोनों पैरों से. जो सेतुबंधासन में पोजीशन थी, दोनों पैरों को हम मोड़ के साथ में रखेंगे पहले. दैट इज फर्स्ट पोजीशन. दोनों हाथों को क्लास्प करके घुटनों को पकड़िए एंड ट्राई टू ब्रिंग नियर योर बॉडी. ब्रीथ आउट एंड देन लिफ्ट योरसेल्फ अप. Very slowly, okay? Bring it down. Very good. और एक बार. द्विपाद और पूर्ण पवनमुक्तासन. दोनों पैरों को मोड़ के आपकी छाती की तरफ लाना है और सांस छोड़ते हुए घुटनों को अपने फोरहेड से टच करने की कोशिश करनी है. ट्राई टू बी इन दिस पोजीशन फॉर 10 to 30 seconds. गुड. वेरी गुड. सो सारे जो आसन का अंतर रखिए. शरीर से थोड़े साइड में पाम्स जाएंगे आपके. सो जाइए ज़मीन पर. गर्दन एक तरफ झुकी हुई. रिलैक्स. Shavasana. Your full body is relaxed. Now focus your concentration from your toes to your head slowly and try to relax each part of your body. Your toes are relaxed. Your legs, knees, waist area, back. Feel that you are relaxing your body. There is no strain. Your shoulders, hands, lose it totally. And now just focus on your breathing and relax yourself completely. Assure yourself that you are totally relaxed. You don't have any worries, tensions. And your mind is full of happiness and calmness. I am a relaxed person. I am happy soul.
Breathe in and breathe out slowly. Don't move. Slowly bring your consciousness back. पहले आप अपने पैर जोड़िए, हाथों को एनर्जी दीजिए अपने. Feel that you are relaxed. अभी आंखें मत खोलिए. Okay. Now slowly turn on your left side. Do not open your eyes. Turn on your left side. And then get up slowly. शवासन. आज ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, नहीं तो और 5-10 मिनट करवाती करना है. और आपके घुटने पे आप अपने हाथ रखिए, नेक स्ट्रेट, आंखें बंद, लेकिन हाथ एकदम ऐसा. दैट इज नोन एज पूरक. आप पूरक करेंगे और जो सांस छोड़ने की क्रिया होती है जिसे रेचक बोलते हैं, वो आप थोड़ा सा पॉसिबल है, मुंह से नहीं करना है, नाक से ही करना है. ठीक है. तो पहले सांस भरिए, पूरक एंड देन रेचक, ताकि पेट को थोड़ा सा जर्क मिले, पेट को. ठीक है. धीरे धीरे करिए आप, धीरे. पूरक रेचक ऐसे 20 टाइम्स कीजिए, बस ज़्यादा नहीं. फिर रेस्ट करना है, वापस 20 टाइम्स करेंगे. आप अपना काउंट खुद कीजिए. वेरी गुड. टाइम्स होने के बाद रुक जाइए, नॉर्मल ब्रीथिंग कीजिए, वापस 20 टाइम्स कीजिए. Please remember, this Kapalabhati should not be done something 500 times, 600 times in the beginning itself. If you are starting yoga practice or if you are doing irregularly, so 50-60 times is more than enough. Relax. ये मुद्रा है उसकी. ये अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल बंद, फिर लेफ्ट से सांस लेनी है. ये 2 उंगलियों से लेफ्ट साइड बंद की, राइट साइड से छोड़ना है. फिर राइट से ही लेके लेफ्ट से छोड़ना है. दैट इज ऑल्टरनेट ब्रीदिंग. यू आर ब्रीदिंग इन फ्रॉम लेफ्ट साइड लेफ्ट. दैट इज 1 साइकिल. दिस इज 1 साइकिल. कहीं पे भी होल्ड नहीं करना है. इट इज नॉर्मल ब्रीदिंग, बट ओनली योर आइज, दैट इज बेटर. अनुलोम विलोम रेगुलर प्रैक्टिस करने से बीपी का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिड्यूस होता है. चश्मे का नंबर भी कम होता है, काफ़ी हद तक कम होता है. यू फील रिलैक्स ऑल्सो. साइनस की प्रॉब्लम कम होती है. देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च ऑल्सो गोइंग ऑन पैरेलली इन कैवल्य धाम लोनावला वेयर वी वर ट्रेनिंग. So there are live examples available with all this experimentation along with yoga trainers and doctors. अनुलोम विलोम, कपालभाति करके किया, अनुलोम विलोम किया. Now last, there are so many types of pranayama. Some type भी है
पोजीशन ले लें, कान पर, ठीक है। नाउ इनहेल, ब्रीथ इन एंड फील द वाइब्रेशंस। Do it 5 times, please. Humming sound is not coming. Please do it little more. टाइम्स होने के बाद वापस ध्यान मुद्रा में 3 मिनट के लिए, और ये प्राणायाम आप कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ कंडीशन ये है कि पूरा खाना खा के नहीं करना है। यू कैन डू इट इन द इवनिंग टाइम अराउंड 7:38। उसके बाद आप आधे घंटे के बाद खाना खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, इससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। ये 3 प्राणायाम और शवासन, प्लीज़ ट्राई टू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस। अभी हम ओंकार का उच्चारण करेंगे, फिर शांति पाठ होगा और हमारा सेशन एंड होगा। अभी 5 बार हम ओंकार का उच्चारण करेंगे ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, एंड यू आर गोइंग टू से अलोंग विथ मी। ओके, ब्रीथ इन, eyes to be closed. सहवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों तलवों को एक दूसरे के ऊपर घिसकर rub your palms and then feel that heat on your face. अपने फेस को उससे मालिश कीजिए थोड़ा सा। थैंक यू सब लोग। सर लोचन मैडम फॉर कंप्लीट सपोर्ट, देन आराधना मैडम, सुनीता मैडम एंड ईला मैडम फॉर